Hello everyone, my name is Ayush from Punjab. Currently I'm a CA final student in new syllabus, and the topic which I'm going to discuss about relates to paper number 1 of CA final new syllabus, that is financial reporting. And the name of the topic is Ind AS 37, that is provisions, contingent liabilities and contingent assets. Firstly, I'll be discussing about the non-applicability of this Ind AS. This Ind AS is not applicable upon executory contracts. Executory contracts are those contracts जिसमें both the parties, buyer and the seller, both haven't fulfilled any of their obligations, और अगर उन्होंने कोई भी ऑब्लिगेशन फुलफिल की भी है तो पार्शली फुलफिल किया है, एंड दैट टू ऑल्सो अप टू एन इक्वल एक्सटेंट. बट इंड AS 37 इज़ एप्लीकेबल अपॉन ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स. ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल करने के लिए जो ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करनी पड़ती है, उस ऑब्लिगेशन की अमाउंट एक्सीड कर जाती है उस बेनिफिट की अमाउंट से जो कि हमें मिलेगी फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, if I am entering into a contract to buy certain goods at a cost of rupees 50,000, and I know that the current market value of those goods is 30,000. That is, the moment I am going to sell these goods, I will be realizing only 30,000 rupees. So here I am making a loss of 20,000 the moment I am settling the contract. So this contract turns out to be an onerous contract, and here Ind AS 37 is always applicable. The next one is the Ind AS 37 is not applicable in case of financial instruments. Ind AS 115 revenue from contracts with customers. Ind AS 116, 103, 19 employee benefits, and Ind AS 37 is also not applicable in case of Ind AS 12, that is income taxes, because DTL की प्रोविजन बनाने की जो परमिशन है वो Ind AS 12 हमें देता है, ना कि Ind AS 37. So before proceeding further, I would like to show you some text which I have written over here, which will be beneficial for you to understand this Ind AS. So अगर तो जो ऑब्लिगेशन को सेटल करने की लाइकलीहुड है दैट इज़ ग्रेटर दैन 50%, ग्रेटर दैन 95%, ग्रेटर दैन 95% चांसेस हैं कि आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. सो इन दैट केस यू विल बी कॉलिंग दैट ऑब्लिगेशन एज वर्चुअली सर्टेन. If the likelihood to settle that obligation is ranging between more than 50% and up to 95%, so that obligation will be called as a probable obligation. If the range is between 5% to 50% to settle the obligation, मतलब chances 5% से लेके 50% तक के बीच में कि आपको obligation वो settle करनी पड़ेगी, that obligation is called as possible obligation. And if the likelihood of settling that obligation is less than 5%, मतलब बहुत कम चांस है कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे इस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए, दैट ऑब्लिगेशन विल बी कॉल्ड एज द रिमोट ऑब्लिगेशन. एंड इन केस ऑफ रिमोट ऑब्लिगेशन यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कंटिंजेंट लाइबिलिटी, नीदर यू वांट टू नॉर यू विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रोविजन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ना तो आप कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करोगे, ना तो आप प्रोविजन रिकॉग्नाइज करोगे इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मोमेंट the obligation is the remote one. So here we will be discussing now about the contingent liability part. I have covered 3 cases here, and one thing which I would like to tell you is एक टाइम पर सिर्फ एक टाइप की ऑब्लिगेशन ही होगी. या तो वो ऑब्लिगेशन पॉसिबल हो सकती है या तो प्रेजेंट हो सकती है. एक ही टाइम पर दोनों ऑब्लिगेशन कभी भी रहेंगी नहीं. So the first case when you will be recognizing the liability as contingent one is, suppose there is a possible obligation and there is no present obligation, and there is also a past even mandatory होना मतलब होना ज़रूरी है if you want to disclose contingent liability or you want to recognize provision or liability. Past even should be there to recognize or to disclose the above. So there is also a past event, but there is no outflow of resources, and also you cannot make reliable estimate of the amount of obligation. आपको outflow हो ही नहीं रहे हैं तो आप reliable estimate किस चीज़ का बनाओगे? आप reliable estimate यहाँ पे नहीं बना सकते. अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही हो आप, तो आपको कंटिंजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करना है इन द नोट्स टू अकाउंट्स. Second case is there is no possible obligation but there is a present obligation. There is also a past event but there is no outflow of resources.
and because there is no outflow of resources, you cannot make a reliable estimate of the amount of obligation. And if all those conditions are being fulfilled, you will be need to disclose the contingent liability in the notes to accounts. And the third case of contingent liability is that there is no possible obligation, but there is a present obligation. There is also past event, and there is also an outflow of resources. But here the outflow of resources is पॉसिबल एंड नॉट प्रोबेबल. पॉसिबल मतलब है कि जो आउटफ्लो की जो लाइकलीहुड है ना, वो इज़ बिटवीन वो प्रोबेबिलिटी रेंज कर रही है 5% से लेके 50% के बीच में, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या हिंट दिया होगा. सो दैट ऑब्लिगेशन इज आउटफ्लो इज ए पॉसिबल आउटफ्लो. सो हेयर the outflow is a possible outflow, and but still here you cannot make a reliable estimate of the amount of obligation. If all those conditions are being fulfilled, you will be disclosing the contingent liability in the notes to accounts. Next one is the provisions. प्रोविजन में कभी भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी. हमेशा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विल बी देयर इन केस ऑफ प्रोविजन. ऑल्सो देयर विल बी मैंडेटरली अ पास्ट इवेंट दैट विल बी लीडिंग टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. एंड यहाँ पे भी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, बट यहाँ पे जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स है ना वो प्रोबेबल होगा. प्रोबेबल मतलब जो लाइकलीहुड है ना वो ग्रेटर देन 50% बट विल बी अप टू 95%. जबकि यहाँ पे जो आउटफ्लो थी वो पॉसिबल थी. कंटिंजेंट लायबिलिटी के केस में पॉसिबल थी, लेकिन जो प्रोविजन के केस में लाइकलीहुड है वो प्रोबेबल है. एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, जबकि आप कंटिंजेंट लायबिलिटी में ये रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे. सो हेयर इफ देयर इज नो पॉसिबल ऑब्लिगेशन बट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देयर इज ऑल्सो पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो प्रोबेबल, एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन. सो हेयर यू विल बी रिकॉग्नाइजिंग provision in the books of accounts plus disclosure will also be made of that provision. The next case is liability का case. Liability के case में भी same, there will never be any kind of possible obligation, always there will be a present obligation, and there will always be a past event also leading to a present obligation, and there is also an outflow of resources. यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमें यहाँ पे रिलायबल एस्टिमेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट पता है कि कितनी अमाउंट हमें पे करनी है टू सेटल दी ऑब्लिगेशन. दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड लायबिलिटी. प्रोविजन के केस में हमें रिलायबल एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितनी अमाउंट हम पे करने वाले हो सकते हैं, बट यहाँ लायबिलिटी के केस में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट पता है. जैसे कि अगर हमें 500 रुपये पे करने तो 500 रुपये हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता है कि हमने इतने पे करने हैं. तो दिस इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द प्रोविजन एंड द लायबिलिटी. कंटिंजेंट लायबिलिटी में तो हम एस्टिमेट कर ही नहीं सकते ना, प्रोविजन में कर सकते हैं. यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कितनी अमाउंट हमें पे करनी है. सो इफ़ यू आर फुलफिलिंग ऑल दोज कंडीशंस यू विल बी रिकॉग्नाइजिंग द लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. There are two cases which I have covered here, in which you will need not be recognizing the contingent liability, neither you will be making any kind of provision. The first one is, अगर suppose possible obligation है but the chances of outflow of resources are almost remote, less than 5% है, तो इस केस में आप कोई भी डिस्क्लोजर नहीं करोगे contingent liability का. Next one is if there is a possible obligation or if there is a present obligation in case of provision. So if there is any kind of possible obligation or if there is any kind of present obligation, but still here also the chances are remote of outflow of resources. So here also you will not be recognizing any kind of provision. बस जब भी आप ये देखो ना कि चांसेस रिमोट हैं, तो चाहे वो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो चाहे वो प्रोविजन हो, कभी भी वो दोनों ही कभी भी रिकॉग्नाइज या डिस्क्लोज नहीं होने वाले हैं. नेक्स्ट वन आई एम कवरिंग हियर इज़ द कंटिंजेंट एसेट. ये मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा. सपोज मिस्टर ए मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी टू बाय सम गुड्स. ए ने कुछ गुड्स बाय करने थे मिस्टर एक्स से. अगर मिस्टर एक्स गुड डिलीवर टाइम पर नहीं करेगा तो ए कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि ए लीगल सूट फाइल कर सकता है तो क्लेम कॉम्पनसेशन, और ए ने वो किया भी क्योंकि एक्स ने टाइम पर डिलीवरी गुड्स की नहीं दी. अब दिस कॉम्पनसेशन को हम इस कॉम्पनसेशन जो कि अगर वो ये जो कॉम्पनसेशन है जो मिस्टर एक्स देगी मिस्टर ए को, ये डिपेंड करता है कि अगर मिस्टर ए केस जीतता है कि नहीं जीतता. अगर वो जीतता है तो ए कॉम्पनसेशन रिसीव कर लेगा एक्स से, अदरवाइज मे बी शायद वो कॉम्पनसेशन रिसीव ना करे इन केस मिस्टर ए केस हारता है तो. सो मिस्टर ए बट इस लीगल सूट के लिए
उस जो कॉम्पनसेशन है उसको कंटिंजेंट एसेट दिखाएगा, जो कि डेफिनेशन भी ये बताता है कंटिंजेंट एसेट जो है वो इट इज़ ए पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट जो है ये हमारे पास जो है कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमने पहले ही एंटर इनटू कर लिया था, जिसमें ये लिखा था कि अगर मिस्टर एक्स ने ए को गुड्स डिलीवर नहीं किए तो उस केस में जो है कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ सकती है मिस्टर एक्स को ए को। मिस्टर एक्स पे करेगा मिस्टर ए को, ठीक है। हुज एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म्ड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। अब यहाँ पे हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स हमारे पास जो वो केस है, केस का जीतना या ना जीतना है, जो कि डिसाइड करेगा कि उसको जो मिस्टर ए को वो प्रोसीड्स कॉम्पनसेशन के मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और ये जो केस है ये किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, जो लीगल सूट है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, इसका आउटकम फ्यूचर पर डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इन केस ऑफ कॉन्टिजेंट एसेट्स, अगर तो जो इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो प्रॉबेबल है, तो अगर वो प्रॉबेबल है तो हमेशा कॉन्टिजेंट एसेट दिखाएंगे। बट अगर जो लाइकलीहुड है वो ग्रेटर देन 95% है तो उस केस में हम कंटिजेंसी वो रिमूव हो चुकी है, तो उस केस में हम उस कंटिजेंट एसेट को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जब बल्कि हम एसेट को रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलमोस्ट सर्टन है कि भैया हमारे पास हमें वो एसेट रिसीव हो ही जाएगा, मतलब हमें वो अमाउंट या इनफ्लो मिल ही जाएगा, तो कंटिजेंसी तो रिमूव ही होगी। तो इस केस में हम इसको एसेट रिकग्नाइज करेंगे, ना कि कंटिजेंट एसेट इसको डिस्क्लोज करेंगे। सो आई होप this video will be of some help to you. Thank you for watching this. Have a happy studies to you.